Good morning, all of you. Today we are going to learn comparing like fractions. So, first look at here. Example number 1. A strip was divided into 5 equal parts. So, ये जो strip है, so it's divided into 5 equal parts. Look at it. 1, 2, 3, 4, 5. So, here 5 equal parts in this strip. It means that each part is 1 by 5. So we learn here one strip is there and how many parts? 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 5 parts है. तो ये हर एक parts का जो value है वो क्या है? 1 by 5. So this one is 1 by 5. Again this one 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5 and 1 by 5. So colored part is 3 by 5. The colored part. So look at here blue colored part. So how many their part colored? Here 1, 2, 3. Out of 5, 3 part is colored. It means 3 by 5. टोटल कितने 5 पार्ट्स है वो डिनोमिनेटर में है और उसमें से कलर्ड कितने हैं 3 है वो न्यूमरेटर मीन्स 3. सो हर अभी 3 पार्ट है तो हमें पता है 1 पार्ट का वैल्यू क्या बताया 1 पार्ट इज 1 by 5. सो 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5. So this is your 1 by 5 plus 1 by 5 plus 1 by 5. So denominator is common. So this one is 5 denominator and 1 plus 1 plus 1 3. Then next the white part is 2 by 5. So here 1 and 2. 1 and 2. These two parts are white. So this means this white part is 2 by 5. 2 by 5. So here 1 by 5 plus 1 by 5. So this white part 1 by 5 and this one is 1 by 5. Both 1 plus 1 2. 2 by 5. The colored part is bigger than the white part. So here colored part is 3 and white part is 2. It means 3 is greater than 2. So 3 is a bigger one. So colored part is bigger than the white part. So this tell us that 3 by 5 is greater than 2 by 5. तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि 3 by 5 is greater than the 2 by 5. This is written as 3 by 5 greater than 2 by 5. तो ये symbol है greater than is symbol. This one. ठीक है. So now next example number 2. So you have to remember symbols. You have to use symbols. Example number 2. This strip is divided into 8 equal parts. So now this is here this one is your strip. So how many parts you have to count first? How many parts here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total 8 part here. And then out of 8, 3 is blue colored, 1 is white and 4 blue colored with black lines. Okay, blue colored with black lines. So what you have to do, you have to find which one is a bigger one and which one is a smaller one. So now first to look at here, 3 of the parts have one color. तो ये 3 part है, इसे एक अलग color है and 4 have another color and this 4 have another color. So hence here 3 by 8 is smaller than 4 by 8. So this one is 3 by 8. So 8 is means total part. Total part out of total 3 is a blue. So 3 by 8. And out of 8 part 4 is dark blue and black lines. So 4 by 8. तो ये 4 by 8 ये पार्ट बड़ा हुआ ये 3 by 8 से. तो इसे ये सिंबल यूज किया गया है. मतलब जो पार्ट हमारा बड़ा है उस साइड हमारा सिंबल होगा. उस साइड होगा. तब ये बड़ा है तो इसलिए ऐसा किया है और यहाँ पे ये बड़ा है 3 by 5. तो ये इसका डायरेक्शन ये है. ठीक है. सो दिस वन इज अवर 3 by 8. तो हम बोलेंगे कैसे. अभी यहाँ पे ये ग्रेटर था, ये पहले ग्रेटर वैल्यू है इसलिए 3 by 5 इज ग्रेटर देन 2 by 5. अब यहाँ पे 3 by 8 ये छोटा है. 3 by 8 इज स्मॉलर देन 4 by 8. So you have to read like this.
So in like fractions, the fractions with the greater numerator is the greater function. अब जो fractions है, अगर उनका जो greater numerator है तो वो क्या है, ग्रेटर फंक्शन होगा. तो न्यूमरेटर मीन्स दिस वन. वी नो दैट हियर आवर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज सेम. हियर 5, डिनोमिनेटर 5 इज सेम. हियर डिनोमिनेटर इज 8, दिस वन इज सेम. तो अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो हमें न्यूमरेटर देखना है. न्यूमरेटर देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 वाला बड़ा है. अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये मतलब 4 वाला बड़ा है. तो हमें जो भी न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा वो हमारा बिगर फंक्शन होगा. ये आपको अच्छे से याद रखना है. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट व्हाट यू हैव टू चेक. यू हैव टू चेक देयर डिनोमिनेटर. इज डिनोमिनेटर इज सेम, देन यू हैव टू check your numerator. The bigger one numerator is your bigger or greater function. तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो आपका बड़ा फंक्शन है. नेक्स्ट, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विथ इक्वल न्यूमरेटर्स. अब देखो यहाँ पे इक्वल डिनोमिनेटर था. अब ये डिनोमिनेटर इक्वल थे, यहाँ पे 8 है डिनोमिनेटर, यहाँ पे 5 है. अब हमारा क्या है, न्यूमरेटर इक्वल होगा न्यूमरेटर. सो और डिनोमिनेटर क्या है, अलग होगा. तो सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट लुक एट हियर. यू हैव लर्न दैट द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 डिक्रीजेस एज अ डिनोमिनेटर इंक्रीजेस. तो हमने देखा कि न्यूमरेटर का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो ये क्या, डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है. सो फर्स्ट ये क्या है आपको एग्जाम्पल के वक्त समझ आ जाएगा. सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाइल लर्निंग दिस एग्जाम्पल. सो फर्स्ट लुक एट हियर. इवन इफ द न्यूमरेटर इज नॉट 1, अगर हमारा न्यूमरेटर 1 नहीं है, द सेम रूल अप्लाई सो लॉन्ग एज ऑल द फ्रैक्शन हैव अ कॉमन न्यूमरेटर. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फिगर बिलो. सो हियर figure, you have to compare all the strip in the figure are alike. So here first look at these strips. First don't read this one. First look at the strip. In this first strip there are 3 parts, 1 2 3, and out of 3 parts 2 parts are colored. Okay, so it means 2/3. हमें पता है टोटल पार्ट होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होगा और जो कलर्ड होगा वो हमारा न्यूमरेटर है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट. ओके, हियर टोटल पार्ट इज 3, means this one is denominator and colored part is 2, so this is our numerator. Similarly, figure strip number second, in that total 4 parts are there. Total 4 parts means denominator is 4 and out of 4 2 is colored, it means 2 is our numerator. Then look at here third strip. In third strip there are total 5 parts, 1 2 3 4 5. 5 parts are here and out of 5 parts 2 parts are colored. So here 2 parts means 2/5. The total 5 parts means 5 is denominator and look at here 2 parts are colored, so this means your 2 is your numerator. So what you have to write here, you have to first look at here 2 of the 3 equal parts of the strip. तो ये क्या, out of 3 2, okay. Then here out of 4 2 colored part and here out of 5 2. So आपको ये फाइंड करने के भी इसमें से कौन सा बड़ा है. तो लुक एट हियर. तो ये कलर्ड पार्ट बड़ा है. ओके, देन दिस वन कलर्ड पार्ट, अभी ये कलर्ड पार्ट इन दोनों से बड़ा है. देन ये कलर्ड पार्ट इससे छोटा है और इससे बड़ा है. और ये वाला कलर्ड पार्ट है वो सबसे दोनों से भी छोटा है. मतलब अभी ये क्या आएगा, ये पहले बड़ा है फर्स्ट, उससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है. इससे बड़ा कौन है, ये है इससे बड़ा, और इससे बड़ा कौन है, ये. तो देखो यहाँ पे द फिगर 2/3 फर्स्ट इज ग्रेटर देन. अब ये 2/3 के तरफ ये दिख रहा है तो ये ग्रेटर देन 2/4 एंड देन ग्रेटर देन 2/5.
तो ये फर्स्ट क्या है, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4, 2/4 इज ग्रेटर देन 2/5, तो ये ऐसे लिखा है। तो ये 2/3 ये दोनों से बड़ा है और 2/4 क्या है, इससे छोटा है, 2/3 से छोटा है और 2/4 से बड़ा है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। सो नेक्स्ट, of two fraction with equal numerators, the fraction with the greater denominator is the smaller fraction. अब देखो, of two fraction with equal numerators, अब देखो यहाँ पे 2 2 2 ये न्यूमरेटर इक्वल्स है, ओके, then here denominator is 3, denominator is 4 and 5, here different denominator. So देखो, of two fraction with equal numerator, the fraction with the greater denominator, अभी जहां पे जिसका greater denominator है वो क्या है, is the smaller fraction, is the smaller fraction. अभी ये देखो, यहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पे 5 है, 5 is greater denominator, बट ये 5 क्या है, सबसे छोटा हुआ है यहाँ पे, ये 2/3 ग्रेटर है, उससे छोटा कौन है 2/4 और सबसे लास्ट में कौन है 2/5 है। तो ये क्या हुआ, द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है। पहले फर्स्ट व्हाट यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक न्यूमरेटर, इज न्यूमरेटर इज सेम, then what you have to do, you have to check denominator, then your denominator is greater, then this value is a smaller fraction. So this one is your smaller fraction. So 2/5 क्या है, smaller fraction है, then after that 2/4 is, and after that 2/3, 2/3 क्या है, सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है 2/4 और सबसे छोटा कौन है 2/5। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपने पहले प्रीवियस में क्या लर्न किया था, प्रीवियस व्हाट डू यू लर्न, सो हियर यू लर्न इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर का वैल्यू, जो न्यूमरेटर इज ग्रेटर, जो भी ग्रेटर वैल्यू है न्यूमरेटर में वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर इज सेम एंड इन न्यूमरेटर जो बड़ा नंबर है वो क्या है, आपका बड़ा फंक्शन फ्रैक्शन है। सो नाउ इन हियर इन योर न्यूमरेटर, इफ योर न्यूमरेटर इज सेम एंड आपका जो बिगर फ्रैक्शन है, बिगर नंबर होगा इन डिनोमिनेटर, बिगर वंस इज योर स्मॉलर फ्रैक्शन, ओके। नाउ नेक्स्ट, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन कैसे कंपेयर करेंगे, सो दैट वन वी हैव टू लर्न। टीचर, suppose we have to compare the unlike fraction 2/5 and 4/7. अगर हमें कंपेयर करना है, एक unlike fraction is the pair of unlike fraction here 3/5 and 4/7. Let us take an example to see how this is done. तो देखते हम ये कैसे कर सकते हैं। These two boys are standing on two blocks. How do we decide who is it taller? So now here two blocks here, and on these two blocks two boys are standing. So what we have to identify, which one is it taller? So first to look at here, first boy here, first one. So this boy's block are bigger in height and this one is shorter in height. तो ये क्या है, बॉक्स का हाइट कम है और यहाँ पे बॉक्स का हाइट ज्यादा है। सो नाउ लुक एट हियर, सोनू, बट द हाइट ऑफ द ब्लॉक्स आर नॉट द सेम। सो हियर हाइट ऑफ द ब्लॉक्स आर नॉट सेम। इफ बोथ ब्लॉक्स आर ऑफ द सेम हाइट, इट इज इजी टू टेल हु इज टॉलर। अगर ये दोनों बॉक्स का हाइट सेम हो गया तो हमें इजी हो जाएगा कि बताएंगे हम लोग कि कौन बड़ा है। सो नंदू, Now that they are on block of equal height, अब इनका ब्लॉक क्या है, यहाँ पे इक्वल हाइट के ब्लॉक्स है। We see that the boy on the right is taller. अब ये जो राइट हैंड साइड का बॉय है था वो क्या है, टॉलर है। टीचर, the height of the boy can be compared when they stand at the same height. तो हाइट क्या है, कंपेयर कब हो सकती है, जब वो सेम हाइट के
बॉक्स पे अगर वो स्टैंड हो गए तो उनका हाइट क्या है, सेम हुआ, तो वो बता सकते हैं। सिमिलरली इफ फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, वैसे ही अगर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डिसाइडेड विच फ्रैक्शन इज बिगर, तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बिगर है। तो देखो यहाँ पे अगर ये ब्लॉक का हाइट अगर सेम है, मतलब डिनोमिनेटर ये अगर सेम है, तो ये दोनों डिसाइड करेंगे कि किसका हाइट बड़ा है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड से किसका हाइट बड़ा है। तो ये इनका मतलब क्या हुआ, ये न्यूमरेटर हुए और ये ब्लॉक क्या हुआ, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन कौन डिसाइड करेगा, तो न्यूमरेटर डिसाइड करेगा। सो नंदू गॉट इट, लेट्स ऑब्टेन द सेम डिनोमिनेटर फॉर बोथ फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, वो दोनों के लिए क्या है, सेम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। So now Sonu, 5 multiplied by 7 can be divided by both 5 and 7. So now look at here, our fraction is here 3 by 5 and 4 by 7. So here denominator are different, 5 and 7 both are different denominator. Then what we have to do, we have to first find the common multiple here. तो इन दोनों के लिए कॉमन, सो वी नो दैट 5 7s are 35 and 7 5s are 35. So 35 here. So look at here, given. So 35 can be the common denominator. So you have to find here common denominator. So here 3 by 5 equals to 3 multiply 7 and 5 multiply 7. अभी यहाँ पे 5 है, 5 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 35 मिलेगा। अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आया, 21 by 35. So and this one is 4 by 7. So 4 multiply 5, 7 multiply 5. अभी यहाँ पे 7 है डिनोमिनेटर में, वी नो दैट 7 5s are 35. तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। सो 20 upon 35. So we know that 20 if denominator is common, then which one is bigger fraction, it's decide by numerator. तो ये डिसाइड करेगा न्यूमरेटर। अब हमें पता है, हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था जिसका डिनोमिनेटर सेम है और जो वैल्यू बिगर है, न्यूमरेटर में जो वैल्यू बिगर है वही बिगर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे 21 इज ग्रेटर देन 20, सो ये क्या है, 21 by 35 इज बिगर देन द 20 upon 35. तो अभी यहाँ पे हमारा ओरिजिनल क्या था, 3 by 5 and 4 by 7. तो 3 by 5 is greater than 4 by 7. To compare unlike fractions, we convert them into their equivalent fractions so that their denominator are the same. तो अगर हमें कंपेयर करना है, अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, so what first we have to do, we have to first that equivalent fraction, we have to find equivalent fraction and we have to do denominator same, and then we have to find which one is a greater and which one is a smaller. So now here we will take problem set 90 in next video. Till here, thank you.